was only a seed, small, soft, buried, but I knew, given time, warmth, and rain, I would crack the earth and grow grain. तुम तो बस एक बीज हो, छोटा, कोमल, मिट्टी के नीचे दबा हुआ, लेकिन बीज जानता था कि समय, गर्मी और कुछ बूंदें मिलते ही वो धरती को चीर देगा और अनाज भरकर बनकर उभरेगा। अगला सत्र कुछ ऐसे ही सफ़र पर केंद्रित है, फ्रॉम मार्जिन टू मार्केट्स, वुमेन एज इकोनॉमिक एजेंट्स थ्रू एफपीओज। इस सेशन के पैनलिस्ट का हम हार्दिक स्वागत करते हुए उन्हें मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे। I'll request Sri Uma Shankar ji, a grassroots social worker from Jakni village, Banda, UP, to please come up on the stage. पद्मश्री श्री उमा शंकर जी से रिक्वेस्ट है कि स्टेज पर आएं। Now I request our second panelist, Ms. Shipra Deo, to please come up on the stage. Ms. Shipra Deo, she works with Global Gender and Land Advisor at Landisa, is a development expert with over 20 years of experience advancing women's land rights and inclusive governance. Based in Uttar Pradesh, she has led many initiatives in agriculture, collective action, and institution building, bridging strategic policy expertise and grassroots vision to empower women across India and global. Welcome on the stage, ma'am. Welcome on the stage, ma'am. I'll request our next guest, Sri Vinod Jain ji, to please grace the stage with his presence. Vinod Jain ji is a development leader based in Lucknow, serving as a managing trustee and executive director at Trust Community Livelihoods. He leads rural resilience and livelihood initiatives across Uttar Pradesh. We welcome you, sir, on the stage. I'll request our next panelist, Sri Janme Shukla, JMT UPSRLM, to please come up on the stage and grace the stage with his presence. Sir is a joint mission director at UPSRLM. He brings over 3 decades of experience in rural development, a driving force behind 10,000 FPOs initiative. He has championed the promotion of 10 lighthouse FPOs among the 70 established by UPSRLM. His leadership fosters institutional platforms that enhance rural livelihoods through income generation and financial access. We welcome you, sir, on the stage. Now, I would like to invite my colleague, Mr. Mansoor Naqvi, to please come up on the stage. I would like to invite my colleague, Mr. Nishikant Dikshit, to please come up on the stage, who is the moderator of this session. Nishikant Dikshit is a seasoned professional who has worked in government and non-government bodies, currently serves as a senior practitioner in Delhi. So, welcome Nishikant, and I'll request you to take the lead. Thank you. Request my colleague to please greet the panelists with the bouquet. Audience, please keep your claps. जी
Ji, thank you, Anshika. Now I would like to invite my colleague, Mr. Mansoor Naqvi, to please come on the stage and share the context of this session. थैंक यू दीप्ति। तो वैसे ये चर्चा ऐसे दौर में पहुंच गई, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये हो गए, तो मैं चाहूँगा कि अगर बहुत पीछे हैं तो थोड़ा आगे भी आ सकते हैं। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी ताकि लोगों और जो बाहर हैं उनको एक बार थोड़ा सा अंदर बुला लें। नमस्कार साथियों, इस महत्वपूर्ण चर्चा में आपका स्वागत है। जैसे जैसे हम जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज, डिजिटल टेक्नोलॉजी और फूड सिक्योरिटी की बढ़ती ज़रूरतों के दौर से गुजर रहे हैं, यह बात और ज़्यादा साफ हो गई है कि खेती और एग्री बिजनेस का भविष्य छोटे किसान के इर्द गिर्द ही घूमेगा। और इनमें भी महिला किसान, ख़ास तौर से महिला किसान जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, उन्हें सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि उत्पादक, उद्यमी और फैसले लेने वाले लोगों के रूप में पहचान मिलनी चाहिए। दुनिया भर में छोटे किसानों की खेती के तरीके और भूमिका तेज़ी से बदल रहे हैं। FPOs, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अब एक मजबूत जरिया बनकर उभरे हैं जिससे किसान अपनी बात एकजुट होकर कह सकते हैं, क्योंकि ये ग्रुप्स हैं, बाजार तक पहुंच बना सकते हैं और बना रहे हैं और निवेश को आकर्षित कर रहे हैं। डिजिटल टेक्निक जैसे मोबाइल सलाह, ई-कॉमर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टूल्स वगैरह दूर दराज के खेत तक भी पहुंच रहे हैं, गांव में भी उनकी पहुंच बन गई है। साथ ही देखें, अगर जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए भी जल संरक्षण, फसल विविधता और मिट्टी की सेहत पर जोर देना और ऐसी क्लाइमेट रेजिलियंस खेती की तरफ बढ़ावा दिया जा रहा है। हम एक नया दौर देख रहे हैं जिसमें महिलाओं के लिए खास तौर से नवाचार हो रहे हैं, चाहे वो लोन हो, बीज हो, खाद की उपलब्धता हो, महिला नेतृत्व वाली यूनिट्स हों, प्रसंस्करण यूनिट हों या फिर ब्रांडिंग हो। और यह बेहद अहम है क्योंकि दुनिया की लगभग आधी खेती महिलाएं करती हैं। फिर भी ज़मीन पर मालिकाना हक, जो आपने पहले सेशन में भी देखा, किसी ने इस बात को उठाया था, चाहे वो लोन लेने की सुविधा हो, प्रशिक्षण हो या निर्णय लेने में उन्हें बहुत कम हक मिलता है, और यह बहुत अहम है। लेकिन अब देखें, हालात थोड़े बदल भी रहे हैं। महिलाएं मिलकर सरकारी संस्थाएं चला रही, सहकारी संस्थाएं चला रही, कोऑपरेटिव्स, FPOs चला रही हैं। बाज़ार में बिकने वाले बहुत सारे उत्पाद जैसे अचार, मसाले, दूध, एग्रीटेक सेवाएं, ये सब अभी देखें तो महिलाएं करने लगी हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर भी हैं जो FPOs से जुड़ी हुई हैं, और यह व्यापार के अगुवा भी रही हैं। कई बार महिलाओं को आप आगे भी देखेंगे अगुवा रही हैं। तो आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं, इस चर्चा में 2 प्रकार का कोशिश करेंगे हम, कि एक तो कि ज़मीन पर कौन कौन से कामयाब तरीक़े अपनाए जा रहे हैं, कौन कौन से ऐसे मॉडल्स हैं जो सक्सेसफुल हो रहे हैं, तो उनको थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे ताकि और इसको हम लोग प्रदेश स्तर पे कैसे ले जा सकें। और दूसरा, किस तरह की टेक्नोलॉजी, क्रेडिट और डिजिटल सहायता को बढ़ाने की ज़रूरत है। तो हमारे पास आज पैनलिस्ट भी इस प्रकार से हैं जो इस पे बहुत अच्छा प्रकाश डाल सकते हैं। तो मैं यही करता हूँ कि आशा करता हूँ कि ये पैनल डिस्कशन हम लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। एक इसी प्रकार का प्रयास है पिछले 1-2 वर्षों में, जो है वो UPSRLM द्वारा प्रमोटेड FPOs के साथ किया गया था। उसका एक बहुत छोटा सा वीडियो है, आप सबसे रिक्वेस्ट है आप उसे ज़रूर देखें, और उसके बाद मैं फिर चाहूँगा कि फिर हमारे पैनल को, डिस्कशन को अच्छे से हम लोग प्रतिभाग करें। धन्यवाद। मूवी चला दीजिए। थैंक यू। With the support of the Walmart Foundation and Transforming Rural India Foundation and the backing of Uttar Pradesh State Rural Livelihood Mission, women from over 1400 villages in Uttar Pradesh are showing just that. दीदी खेती से लेकर घर तक पूरा मेहनत दीदी करती थी, मगर पैसा दीदी के हाथ में नहीं आता था। तो किसानों को अब घर से समय निकाल करके मार्केट जाना, उसका खर्चा अलग से, बाइक वगैरह पेट्रोल का, और मार्केट में जो होता है कि 10-20 रुपए ज़्यादा ही मिलता है।
फसल तो दीदी उगा लेती थी, मगर बेचने में दीदी को दिक्कत होती थी। व्यापारी को ही गांव में देती थी, वो लोग बिचौलिए लोग अपने मनमानी रेट गिराकर दीदी लोग से खरीदते थे। Invisible and unsung, such has been the fate of the massive contribution of women towards India's agriculture economy. Despite their arduous efforts, they rarely have a voice in decision making. Limited access to finance, weak market linkages, poor infrastructure, and the absence of recognition as the real farmers make it very hard for them to build a sustainable business. TRIF, along with Walmart Foundation, set out to change that. The goal was to build 10 women FPOs as lighthouse FPOs, with an intent to develop practical, sustainable, and replicable model of women FPOs, especially in the NRLM architecture. TRIF introduced the Panchatantra model, a 5-part framework to empower, formalize, and scale women-led FPOs. Step 1. Make every FPO business ready, with bookkeeping, legal compliances, trained leadership, and access to credit. Step 2. Link them to trusted partners for high-quality inputs like seeds, fertilizers, and crop protection. Step 3. Enable doorstep aggregation of surplus produce through village-level digital commodity collection centers and connect them to reliable markets through institutional partnerships. Step 4. Set up FPOs owned Krishi Value Hubs, local units to process and add value to produce like pulses, rice and spices. Step 5. Build bioeconomy businesses like biofertilizer units and solar microgrids, creating green local livelihoods. मीपुरवा में 10 D3 सेंटर लगे हुए हैं कि जो दीदी लोग का अनाज घर से ही खरीद लेते हैं सेंटर पे। जो एपीओ में आमदनी होता है उसमें भी भागीदारी दीदी लोग का है। आज हमारी जो D3 सेंटर पे दीदी बैठी हैं, खुद वजन देखती हैं, दीदी मोल भाव करती हैं, दीदी खुद तौल कर आती हैं। TRI और वॉलमार्ट की सपोर्ट से हम लोगों को आज तक कम से कम 1 करोड़ 60 लाख का टर्नओवर किए हैं। हम किसानों से डिमांड ले करके और फिर अपने एफपीओ को देते हैं, जैसे खाद हुआ, यूरिया, सुपर, पोटास वगैरह, और दवाइयाँ जो है कीटनाशक हुई, फंगीसाइड हुई, पेस्टिसाइड हुई, तो ये सारी चीज़ें हम वहाँ से अपने यहाँ लाते हैं और फिर यहाँ से किसानों को पहुँचाते हैं उनके घर। कभी कोई किसान आके घर से ले जाता है और कुछ लोगों को हम उनके घर पहुँचाते हैं। हमारे यहाँ के किसान हैं वो रासायनिक उर्वरक का ज़्यादा उपयोग करते हैं, तो उससे खेती भी खराब हो रही है। तो अब हम अपना जैविक खाद का उद्योग लगाकर उनको समझा रहे हैं और जैविक खाद का उपयोग भी करवा रहे हैं। आजकल जैसे बाज़ार में वैसे मसाले मिल रहे हैं, उनमें केमिकल मिलावट रहती है। हमारे जो उन्नति प्रोसेसिंग है उसी सेंटर पर हम खुद की मशीन द्वारा पीस के पैकेजिंग करते हैं। फिर उन्नति दीदी बनी हुई है, वो हमारे यहाँ गाँव लेवल पर गाँव जाती हैं और वहाँ पर बेचती हैं। Today, 10 Lighthouse Women FPOs now reach over 10,000 shareholders, collectively achieved turnover of over 6 crores, mobilized government support of around 17 crores, and all this in less than 2 years of engagement starting from the scratch. They are operating Krishi Value Hubs and D3C centers, selling processed dals, masalas, and fresh produce under their own brand names. Once seen only as laborers, women are now emerging as farmers, directors, trainers, and agri-entrepreneurs, claiming their rightful identity and reshaping rural economies. This transformation, driven through all women FPOs under the NRLM framework, stands as a scalable model for integrating women into economic activities, unlocking prosperity for their families and communities. The five-fold model is now serving as a blueprint for the development of women-led sustainable businesses, currently scaling across 70 WFPOs in the state under the UPS RLM ecosystem. A dream once distant is now taking shape as reality with TRIF's efforts and the determination of these incredible women. Women who aren't just transforming their own lives but are leading a revolution that is set to transform the very fabric of the rural economy. Rooted in dignity,
strength and shared progress. धन्यवाद मंसूर इस पर्टिकुलर पैनल डिस्कशन के लिए कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, और एक जो ये हम लोगों ने एक छोटा सा प्रयास किया है UPSRLM के सहयोग से ताकि एक ग्लिम्स मिल सके कि क्या किया जा रहा है। सबसे पहले मैं शिप्रा जी आपके पास आना चाहूँगा कि स्वयं सहायता समूह, ग्राम संगठन और कई सारे उत्पादक संगठन, अनरजिस्टर्ड प्लस फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, और जब हम फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें प्रोड्यूसर कंपनी और जो कोऑपरेटिव्स हैं उन दोनों को मिला के ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो इस तरह के संगठन, और क्योंकि आप लैंडीसा के साथ में ग्लोबल जेंडर एंड लैंड एडवाइज़र हैं, लैंड को लेके, क्योंकि पिछली सेशन में भी ये बात हुई कि कौन लैंड ओन करता है, तो जस्ट एक नंबर के हिसाब से अभी तक सिर्फ 13% जो ज़मीन है वो महिलाओं के नाम है। वो डिफरेंट कारणों की वजह से है, बट तो उन सब चीज़ों में इस तरह के उत्पादक संगठन कैसे काम कर सकते हैं जो कि महिलाओं को महिला किसान के रूप में एक पहचान दिलाने में मदद मिल सके। तो सबसे पहले मैं वो जानना चाहूँगा आपसे। निशी, मैं आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल खड़ा किया है कि महिलाओं को हम किसान होने की पहचान कैसे दिलाएं। चल रहा है थोड़ी? हाँ, तो मुझे लगता है मैं शुरू करूँगी। मैं उत्तर प्रदेश में करीब 15 साल पहले आई। 2010 में मैंने यहाँ पर किसानों के साथ, खासकर महिला किसानों के साथ काम करना शुरू किया। और जब मैंने यहाँ महिला किसानों के साथ उस समय काम करना शुरू किया तो मैंने सोचा मैं सबसे पहले यहाँ जाके मंडी देखती हूँ। महिलाएं उत्पादन तो करती हैं, ग्रामीण इलाकों में हम जाते हैं तो हम सभी लोग देखते हैं कि महिलाएं बीज बोना, ज़मीन की तैयारी करना, फसल की हार्वेस्टिंग करना वगैरह सब काम करती हैं। लेकिन जब मार्केटिंग की बात आती है तो महिलाएं पीछे रह जाती हैं, उनके लिए वो रास्ते नहीं हैं। तो मैं यहाँ लखनऊ में दुबग्गा मंडी गई और महाराष्ट्र में भी मैं एक मंडी में गई और मैंने वो देखा जो मैं कभी अपने घर में बैठे कल्पना नहीं कर सकती थी अगर मैं महिलाओं के साथ काम करती हूँ तो भी। मैंने देखा यहाँ दुबग्गा मंडी में पूरी मंडी जो है एक पुरुषों की जगह है और मैं वहाँ खड़ी होकर ये सोच रही थी कि जिस महिला किसान की हम बात कर रहे हैं अगर उसको इस मंडी में आकर अपनी फसल बेचनी है तो वो कैसे बेच ही सकती है। और क्योंकि जो पूरा प्राइस नेगोशिएशन होता है एक आड़ती के इर्द गिर्द वो पुरुषों का जमावड़ा होता है। जो रेट तय होता है वो इशारों में तय हो जाता है। और महाराष्ट्र में जब मैं गई तो एक मंडी में मैं देख के हैरान रह गई कि उंगलियों के ऊपर रुमाल रख के और उसके अंदर रेट तय हो जाते हैं। कोई महिला कैसे उस नेगोशिएशन में भाग ले सकती है कि वो अपनी फसल बेचना चाहती है या नहीं बेचना चाहती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि इस हद तक महिलाएं उस व्यवस्था से बाहर हैं। और जब हम किसान की पहचान की बात करते हैं तो FPO, प्रोड्यूसर कंपनी, आज बहुत सारी संस्थाएं, सुखद है कि महिला किसानों के लिए काम कर रही हैं, पर महिलाएं जनरेशन्स से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में और खेती में शामिल रही हैं। हमेशा खेती से जुड़ी हो या पशुपालन हो या फिशरी हो, इन सब चीज़ों में। अब बदला ये है कि इन सब संगठनों के माध्यम से हम उस लेबर को, उनके काम को एक्नॉलेज कर पा रहे हैं और इस तरह के FPOs और प्रोड्यूसर कंपनीज़ उनको एक प्लेटफॉर्म दिलाती हैं, एक विजिबिलिटी दिलाती हैं जहां हम देख पाते हैं कि अच्छा महिलाओं में ये हुनर भी है, वो चाहें तो बाज़ार भी कर सकती हैं, हम उनको अवसर दें तो वो ये भी कर सकती हैं। और किसान होने का तो ये है कि महिलाएं काम भले सदियों से करती रहीं, लेकिन हम लोगों ने हमेशा किसान शब्द अगर अभी भी हम उच्चारण करते हैं तो हमारे दिमाग में एक पुरुष की तस्वीर आती है। आज का अखबार अगर आप देखेंगे तो उसमें फुल पेज का ऐड है, समृद्ध किसान विकसित भारत। आप देखेंगे किसान की तस्वीर। जब भी हम किसान की बात करते हैं, अगर हम सचेत और सजग नहीं हैं तो हम
पुरुष की ही बात करते हैं। और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि जितनी भी नीतियाँ बनती हैं वो पुरुष किसान के हिसाब से बनती हैं। जब हम मंडियाँ बनाते हैं तो वो पुरुषों का स्पेस होता है। मंडी के बोर्ड का गठन होता है तो उसमें सिर्फ पुरुष होते हैं। हम ये नहीं सोचते कि मंडी तक महिलाएं कैसे जा पाएंगी। क्या हम कोई काउंटर बना सकते हैं जहाँ पर कि मंडी में कोई महिला आके अगर अपनी फसल बेचना चाहे तो उसको कुछ गाइडेंस दी जा सके। कोई मंडी में हम महिलाओं के लिए टॉयलेट स्पेस क्रिएट कर दें जिससे कि वो सुविधापूर्वक वहाँ पे आ सके। तो इस सारे परिप्रेक्ष्य में मैं कहूँगी निशी कि ये जो पूरी जो नई योजनाएं प्रोड्यूसर कंपनी और एफपीओज़ के माध्यम से महिलाओं को संगठित करके संगठित बाज़ार उपलब्ध कराने की हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पर मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म नहीं कर सकती। मैं ये भी ज़रूर कहूँगी कि जब हम महिलाओं के इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन की बात करते हैं तो हम उनको खाली एक इकोनॉमिक एजेंट की तरह नहीं देखें। वो खाली एक इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है और इसके साथ साथ उनके अधिकारों की और उनकी गरिमा की, उनको बराबर मौके दिए जाने की, वो सब बातें करना, उनके बारे में इंटेंट रखना वो भी बहुत ज़रूरी है। महिलाएं इकोनॉमिक पार्टिसिपेट कर रही हैं लेकिन इकोनॉमी में पार्टिसिपेशन के साथ उनके घर का काम कम नहीं हुआ। मैं एक 1936 में सबसे पहली बार जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब एक कमेटी गठित हुई थी जो कि ये चर्चा और रेकमेंडेशन देने के लिए थी कि एक स्वतंत्र भारत में विमेन का क्या रोल होगा इन अ प्लान्ड इकोनॉमी, क्या होना चाहिए। और उस कमेटी ने उस समय, आज जब हम इतनी ज़्यादा बातें भी नहीं करते थे, तब ये दो बातें बहुत महत्वपूर्ण कही थी कि जो महिलाओं का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन है वो खाली लीगल या कानूनी बैरियर हटा देने तक सीमित नहीं है, बल्कि जो दो महत्वपूर्ण बातें हमें ये देखनी चाहिए वो ये है कि जो महिलाएं अगर इकोनॉमी पैसे कमा के भी ला रही हैं तो उसका नियंत्रण कौन करता है, वो इसका इस्तेमाल कैसे करती हैं, उनको वो हक है या नहीं। और दूसरा ये कि उनके ऊपर परिवार के काम का, घर के काम का और बाहर के काम का दोनों के बोझ तो नहीं हम डाल दे रहे। तो हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर जो घर के कामों का बोझ है वो भी साथ में थोड़ा एड्रेस हो और जो पुरुष हैं वो कम से कम घर के कामों को अपनी गरिमा से नीचा तो नहीं समझे। तो इसको हमें दोनों चीज़ों को साथ में मिलाकर देखना चाहिए। इकोनॉमिक एजेंट महिलाएं निश्चित तौर पे हैं, ये सारे प्रयास बहुत सराहनीय हैं, पर हम इस बाकी इकोसिस्टम, बराबरी, गरिमा, अधिकार, इन सब बातों को अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो मुझे लगता है कि हमें फिर से एक एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम को ही ज़्यादा गाढ़ा और मजबूत कर देंगे। यहाँ मैं रुकूँगी। ठीक है, थैंक यू शिप्रा जी। तो एक जो इम्पॉर्टेंट बात जो समझ में आई मुझे कि आप बोल रहे हैं कि सिर्फ विमेन एज इकनॉमिक एजेंट ना हो, उनके डिसीजन मेकिंग में एजेंसी वाली जो बात है एंड जो जेंडर रोल्स हैं, स्पेसिफिकली केयर गिविंग का रोल, उस चीज़ को भी अपन जो है समझते हुए और कैसे महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, इस पर बात करें। कुछ तथ्य मैं बताना चाहूँगा कि भारत सरकार ने 2019 में 10,000 FPOs एक करके एक स्कीम निकाली थी। किसान उत्पादक संगठन वैसे 2002 में ये अलग कमेटी के माध्यम से आया था और उसके बाद 2013 में फिर से कंपनीज एक्ट में चेंज हुआ। आज की स्थिति में 16,000 के आसपास टेंटेटिव जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड हैं, जिसमें करीबन 810 ही ऐसी हैं जो 100% जिसमें विमेन शेयर होल्डर्स हैं, क्योंकि मिक्स भी बनाई जा सकती हैं और जनरली एक्सक्लूसिव भी हैं। डेटा ये बोलता है कि 30% जो मेंबरशिप है वो महिलाओं के पास में, लेकिन फिर भी एक्सक्लूसिव जो है वो सिर्फ 810 हैं। इस क्षेत्र में NRLM, UPSRLM एक बहुत बड़ा काम कर रहा है। मैं जन्मेजय सर से ये पूछना चाहूँगा कि 2013-14 से समूह गठन, फिर ग्राम संगठन, CLF और अब मार्केट एक्सेस के लिए फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो आप उसको कैसे देखते हैं कि जो चीज़ आज की स्थिति में जितने भी नंबर्स आपके पास में हैं, 1 करोड़ महिलाएं जो हैं, उनको उस सशक्तिकरण की राह पे कैसे पहुंचाया जा सकता है? धन्यवाद निशी जी।
बड़ा समसामयिक टॉपिक है। मुझे सबसे पहले तो इस बात की बड़ी खुशी, 3 कारणों से खुशी है। एक तो मैं आई एम शेयरिंग द डायस विद पद्मश्री अवार्डी। नंबर 2 बात डाइवर्स ग्रुप है। नंबर 3 बात आज सुबह से समूह की चर्चा हो रही है। तो वी आर रिप्रेजेंटिंग द SHG, रूरल SHGs। और तीसरी बात है वी आर वर्किंग इन क्लोज कोऑर्डिनेशन विद TRI के साथ हम काम कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमारे दिल के बड़ी नज़दीक है कि आई एम एन एलुमनी ऑफ दिस लखनऊ यूनिवर्सिटी। मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी का पला बड़ा हूँ। JK के सामने, जस्ट सामने जूलॉजी का डिपार्टमेंट है। मैंने यहाँ से MSc जूलॉजी किया था और JK और MSc जूलॉजी के बीच में अक्सर हूटिंग हुआ करती थी। और एक और सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि व्हेन आई जॉइंड दिस इंस्टीट्यूशन SRLM एज जॉइंट मिशन डायरेक्टर 2 years back, तो this University of Lucknow was not there in the empanelment university for the recruitment of YPs. So I made it sure in 1 month's time कि Lucknow University should also be a part of this. और फिर उसके बाद फिर मैं यहाँ आया इसी JK हॉल से। हमारे ऑफिस के 3-4 बच्चे बैठे, दे आर ऑल फ्रॉम दिस JK बिल्डिंग ओनली। ये सब MSWs हैं और ये हमारे यहाँ काम कर रहे हैं। मैंने यहाँ इंटरव्यू लिया लखनऊ यूनिवर्सिटी में और मुझे बड़ी खुशी है कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के बच्चे हमारे यहाँ हैं और आगे भी आते रहेंगे। तो ये 4-5-6 कारण थे। मुझे एक्चुअली आज 1 महीने के बाद मुझे अपने परिवार के साथ नोएडा, मेरी बच्ची वहीं पर है, मेरी पत्नी भी वहीं पर है, मैं वहीं जा रहा था। बट आई पोस्टपोन दिस जस्ट बिकॉज ऑफ अटेंडिंग दिस कॉलोकी ओनली। दिस वॉज द रीज़न। मैं इनसे पूछ रहा हूँ जल्दी करो ताकि मैं अभी 3 बजे निकल जाऊँ तो रात के 10 बजे पहुँच जाऊँगा बाई रोड। तो एनीवे दीज वर द 4 मेजर रीजन। जब मैंने आपके बारे में सुना पद्मश्री भी यहाँ पर इन्वाइट है, मैंने आपको 1-2 और अफसरों में सुना है। मेरी ससुराल चित्रकूट में आपको बहुत फॉलो करता हूँ नज़दीक से, तो मैं देखता रहता हूँ, आपके बारे में पढ़ता रहता हूँ, वीडियोज़ देखता रहता हूँ। आप ज़मीन से बहुत जुड़े हुए लोग हैं और संयोग से मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने इस SRLM को से पहले जो SGSY स्कीम थी, जो IRDP थी, I am a civil servant for the last 29 years I am in this department और मैंने बहुत नज़दीक से देखा है। और संयोग से जब मैं अपनी उपलब्धियां बताने नहीं आया, मैं बता रहा हूँ जर्नी कहाँ से आती है। आपने 2013 से बात करनी शुरू करी, मैं उससे और पहले की बात करना चाह रहा हूँ। हो सकता है मैं थोड़ा डेविएट कर रहा हूँ FPO से, लेकिन थोड़ा सा भूमिका इसलिए बनाना चाह रहा हूँ कि FPO सडनली नहीं आ गया, महिलाएँ सडनली नहीं आ गई। ये बहुत पहले से कंसेप्ट है। IRDP से हमने नौकरी शुरू करी थी, 97 में मैंने नौकरी शुरू कर दी एज ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। और जो नौकरी के 3-4 महीने में हमें, जब ये बांग्लादेश से SGSY का कंसेप्ट आ रहा था, तब हमें आंध्र प्रदेश जाने के लिए टीम बनाई गई। पूरे देश भर में सब टीमें भेजी गई थी। हमें सहयोग से मौका मिला जाने के लिए। जब SGSY योजना लॉन्च हो रही थी तब हमें जाने का मौका मिला। हमें आंध्र प्रदेश के मेडक डिस्ट्रिक्ट में और 3-4 डिस्ट्रिक्ट में जाने का मिला। और हमने जब वहाँ देखा तो ये पाया कि अपना उत्तर प्रदेश आंध्र प्रदेश से कितना पीछे है। वहाँ गांव-गांव में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप के जगह वहाँ पर महिलाएं सिलाई कढ़ाई कर रही थी, कारखाने लगे थे, वर्कशेड्स लगे थे, लोग काम कर रहे थे। ये जो शर्ट्स हम रेडीमेड शर्ट्स अब देख रहे हैं, वे बैक इन 99 दे वर मेकिंग इन द रूरल एरियाज ओनली। इन क्लस्टर लेवल, जो अभी क्लस्टर लेवल की सुबह बात हो रही थी, वहाँ क्लस्टर न्याय पंचायत लेवल पर 5-6 गाँव के बीच में एक न्याय पंचायत जो होती है, वहाँ पर एक छोटा मोटा वर्कशेड बना रखा, वहाँ पर मशीनें लगा रखी थी। दीदियाँ वहाँ स्टिचिंग कर रही थी, जो अपने बचे हुए समय से समय निकाल के आ रही थी, वहाँ स्टिचिंग कर रही थी। कहीं पर ग्राइंडिंग हो रही थी, कहीं पर फूड प्रोसेसिंग हो रहा था, कहीं और ढेर सारे काम होते। वो सब हम लोग पढ़ के आए, देख के आए, नोट कराए, फिर स्कीम लॉन्च करी, तमाम चीज़ें लॉन्च किया यहाँ पर। एंड दिस FPO इज़ वन पार्ट ऑफ दैट जर्नी ओनली। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं तो तब से लिए। बताने में ये खुशी हो रही, तब जब SGSY से जब ये जर्नी हुई तो बहुत अंतर आया। फिर NRLM लॉन्च हुआ, देखा गया कि नहीं, पाया ये गया, जैसे सुबह भी बात हो रही थी, आज भी अभी बात हो रही है, कि जहाँ हमने देखा, सुबह सर साहू सर थे, HOD सर यहाँ थे, तमाम सोशल कैपिटल की बात किया, महिलाओं के पंक्चुअलिटी, उनकी सबके बारे में बात किया, तो ये पाया ये गया कि पुरानी स्कीम से नई स्कीम में जब ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, तो ये पाया गया जितने भी SSG जो हमारे महिलाओं द्वारा चलाए जा रहे थे, वो ज़्यादा बेहतर थे। उनमें ज़्यादा कोहेसिवनेस थी, उनमें ज़्यादा आपस में लेन देन था, वो ज़्यादा बैंकिंग चीज़ों को समझ पाते, उनको लेन देन उधार सब चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी। तो फिर हुआ कि एक्सक्लूसिवली वुमेन SHGs बनाए जाएँ, तब ये SRLM आया। जब ये SRLM आया तब उन्होंने कहा एक और बड़ी चीज़ की कमी थी कि हम तब 1 टाइम लोन देते थे, अब हम मल्टीपल डोजेज ऑफ लोन देंगे।
उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से लोन देंगे ताकि क्रेडिट की कमी ना रहे। उनके पास जो भी सुबह बात आ रही थी कि पैसे की कमी ना रहे उनके पास में। फिर एक और बात निकल के आई कि अगर हम ये सब बातें मैं आपको बैकग्राउंड थोड़ा इसलिए ले जाना चाह रहा हूँ ताकि आप इस कंसेप्ट को समझ पाए कि कहाँ कहाँ हम कर सकते हैं, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेसेस है। तो जब ये चीज़ निकल के आई तो कि हम महिलाओं को बना, एक था कि स्ट्रक्चर नहीं था, कोई फेडरल स्ट्रक्चर नहीं था। सुबह बात आई, अभी सुबह के सेशन में बात हो रही थी कि हम एक क्लस्टर लेवल पे काम करें। ये सारी चीज़ें जोड़ते हुए निकल के आया कि हमारे पास 3 काम हम कर ले जाएं। अगर नंबर 1 उनको हम अच्छे से उनका एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दें पूरा, जिसपे कि हमारे पास SHGs हों, फिर उसके बाद विलेज ऑर्गेनाइजेशन हो, फिर क्लस्टर फेडरेशन हो, इसके ऊपर एक ब्लॉक लेवल फेडरेशन हो और एक स्टेट लेवल पे ऑफिस और नेशनल पे, और ऐसे रिसोर्स पर्सन्स लेके आए। जैसे कहा कि अभी सुबह बात हुई कि बिचौलिए बहुत लग जाते हैं बैंक की लोन कराने में, तमाम और लोग लग जाते हैं जो अपने इनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, वो लोग ना लगने पाए। तो हमारे पास ऐसे प्रोफेशनल्स हों जो बहुत हाईली क्वालिफाइड हों, सोशल वर्क से हों, MBAs हों, फाइनेंस के लोग हों, मार्केटिंग के लोग हों, ताकि जितने भी कठिनाइयाँ आती हैं किसी प्रोडक्ट को बनाने से लेकर के उसके बेचने तक, वो सारी चीज़ें कैटर हो सकें। तो तब ये कंसेप्ट निकल के आया कि हम इनके लिए हम वो करें कि हम प्रोफेशनल्स को लेके आएँ। जब ये सारा चीज़ें आ गई तो अब ये चीज़ें फिर धीमे धीमे जब हमारा ऑर्गेनाइजेशन सेटअप खड़ा हो गया, हमने लगभग 97 लाख दीदियों, लगभग 1 करोड़ दीदियों को यहाँ जोड़ लिया सेल्फ हेल्प ग्रुप में। हमने करीब लगभग 9 लाख के आसपास SHGs बना लिए, हमने 60,000 के ऊपर करीब विलेज ऑर्गेनाइजेशन बना लिए, करीब 3,000 हमने क्लस्टर लेवल फेडरेशन जिसमें 3-3 हज़ार SHGs जुड़े हुए हैं, 3-3 मतलब 300 SHGs जुड़े हैं, 3-3 हज़ार महिलाएं जुड़ी हैं। अगर आपको इफ एनी वन ऑफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ दीज क्लस्टर लेवल फेडरेशन, देन यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि दीदियाँ कितने अच्छे से मीटिंग ऑर्गेनाइज करती हैं। वहाँ एक एक का पूरा हिसाब किताब पढ़ा जाता है, वहाँ ये पढ़ा जाता है कि कैसे कैसे उन्होंने क्या क्या काम किए, रोटेशन ऑफ लीडरशिप होती है वहाँ पर, और एक क्लस्टर लेवल फेडरेशन में एक एक पैसे का हिसाब किताब रखा जाता है कि कहाँ किसको कितना पैसा दिया गया, किसने कितना वापस किया, उस पैसे से क्या इस्तेमाल किया, ये सारा हिसाब किताब चलता है और देखा जाता है। ये दीदियों के द्वारा ही, दीदियों के बनाए समूह को, दीदियों का ही सुपरविजन, दीदियों के ऑब्जर्वेशन काम चल रहे हैं। अब हम बात करते हैं तो अब हम जब काम कर रहे हैं तो यहाँ 2 तरीके की एक्टिविटीज़ हैं बेसिकली। एक है फार्म लाइवलीहुड, एक है नॉन फार्म लाइवलीहुड। जैसे सुबह बात हुई कि खेती किसानी तो एक सीमित क्षेत्र में है, घटते हमने पढ़ा था, जब हम पढ़ते थे बचपन में, आप सबने सुना होगा, भारत एक कृषि, शुरुआती यही होती थी, भारत एक कृषि प्रधान देश है, देश की 70% आबादी जो है वो खेती किसानी पर निर्भर करती है। 70% घटते घटते वो 48% आ गई। तब पढ़ा था कि देश की अर्थव्यवस्था में इसके कृषि का बहुत बड़ा योगदान था। वो योगदान था, देयर वॉज एट वन टाइम, वो जो योगदान जो 45% था वो घट करके 18% हो गया। वो योगदान घटता चला गया, बढ़ता, और इधर हमारे लोग भी हटते चले गए क्योंकि खेती अब प्रोडक्टिव नहीं रह गई। खेती को कैसे प्रोडक्टिव बनाएं, आपके सामने साक्षात मौजूद हैं जिन्होंने बताया कि जल, जमीन, जीवन, जंगल कैसे ठीक किया जाए तो खेती कैसे प्रोडक्टिव हो सकती है। मैम ने बताया कि महिलाएं वहाँ तक तो सीमित हैं, किसान की पहचान जो है एक पुरुष किसान ही, हलदर किसान ही दिखाई पड़ता है फोटो में से लेकर के, सभी मीडिया से लेकर सभी जगह पर कोई महिला किसान नहीं दिखाई पड़ी। महिलाओं को केवल धान रोपते हुए दिखाई दी, इस वीडियो में भी दिखाया गया, महिलाओं को धान की बेड़ को रोपते हुए दिखाया गया। लेकिन क्या महिलाएं बाजार भी कर सकती हैं? क्या महिलाएं फूड प्रोसेसिंग में भी कर सकती हैं? क्या महिलाएं किसी और काम को भी कर सकती हैं? इस काम को जिस किसी ने वो धारणा को बदला, नहीं केवल महिलाएं धान की रोपाई नहीं कर सकती, नहीं महिलाएं केवल सिंघाड़े की बेल नहीं ला सकती, नहीं महिलाएं केवल पान की खेती नहीं कर सकती, नहीं महिलाएं केवल खेती तक सीमित हैं, ऐसा नहीं, महिलाएं मार्केटिंग भी कर सकती हैं, महिलाएं फूड प्रोसेसिंग भी कर सकती हैं, और महिलाएं हर वो काम कर सकती हैं जो उनको अपने घर के काम के बचने के बाद जो उनका बचा हुआ समय होता है, उस काम को अगर उनको वहाँ मुहैया करा दिया जाए, जो निकल के आ रही बातें, तो वो सारा काम वो महिलाएं कर सकती हैं। और इस काम को अगर कोई इस काम सफल बना पा रहा है तो UPSRL ने इस काम को बहुत अच्छे समझा। मैं अपने संस्थान की, मैं अपने संगठन की बात नहीं करने आया हूँ, संस्थान की बात नहीं करने आया हूँ, ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं करने आया हूँ, मैं ये बताने आना चाहा हूँ कि FPO का जो मॉडल आया था, देयर वॉज अ टाइम 2 years बैक, जब उन्होंने हमारे एडिशनल सेक्रेटरी भारत सरकार ने कहा यूपी में कुछ नहीं हो सकता, यूपी ने 70 FPO आपको दिए हैं, शुक्ला जी आप कुछ नहीं कर सकते। तो आई टुक इट एज ए चैलेंज, मैंने कहा सर just give me 3 months time, I will make it sure that all 70 FPOs will be registered in 3 months time only. After 3 months, there was another workshop in Assam,
and we attended along with Umesh, Shivam must be sitting here perhaps. हमने वहाँ उन एडिशनल सेक्रेटरी सर को कहा कि सर हमने आपसे 70 FPO का वादा किया था, महिला किसानों का संगठन खड़ा करने का वादा किया था। हम आपको बताते बड़ी खुशी हो रही है, हमारे 70 महिला संगठन सक्रिय हो गए, रजिस्टर हो गए, उन्होंने काम शुरू कर दिया। और इस वीडियो में आ रहा है कि 1 करोड़ का उन्होंने, ये दीदियाँ बैठी होंगी, हमारे सुल्तानपुर की, बहराइच की, हमारे अलीगढ़ की, जो TRI ने उठाए हैं, जिनको लाइट हाउस बनाया है, इसके अलावा हमारे और FPOs, इन सब में शेयर होल्डर की संख्या बढ़ती जा रही है। लगभग 30,000 महिलाएं इसमें संगठित शेयर होल्डर के रूप में आ गई है और 7 करोड़ से ऊपर बिजनेस किया है। 7 करोड़ से ऊपर हमने पहला कॉन्फ्रेंस अभी पिछले बार कुंभ मेले में हमने FPOs के सारे पदाधिकारियों को वहाँ बुलाया था, महिला किसानों को बुलाया था। अब हम वहाँ पर CEOs लगा रहे हैं, हम वहाँ पर उनके और HR के लोगों को भर्ती कर रहे हैं और हम एक ट्रैक कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से इन महिलाओं को आगे बढ़ाएं। जब अभी भारत सरकार से, हो सकता है थोड़ा टाइम बढ़ गया हो, लेकिन मैं 1 मिनट केवल बताना चाहूँगा, भारत सरकार से सेक्रेटरी होम आए थे खाली ये स्टडी करने के लिए कि ये कैसे काम कर रही हैं। तो उन्होंने ये पाया अलीगढ़ में एक जो हमारा FPO टप्पल में बना हुआ, वो आपके TRI से ही सपोर्टेड है। वो तो जहाँ तक मैं समझता हूँ, वहाँ उस महिला ने बताया कि CDO साहब ने ये इनिशिएटिव लिया कि जो हमारी यूरिया और DAP की रैक आ रही थी, उन्होंने हमारे FPO को दिला दिया और वो सारी की सारी रैक हमारे FPO के पास आ गई। अब हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से, किसी भी उससे हम कम्पीट कर रहे हैं और लोग हमारे FPO को मान्यता दे रहे हैं। हम उनसे अच्छी सुविधा हमें मिल रही है। उनको मालूम है कि ये नकली DAP नहीं देंगे, उनको मालूम है कि यहाँ कोई बोरी में घटतौली और उसकी बात नहीं आएगी, उनको हमारे पर भरोसा है। तो वो वहाँ पर उनका एक एडिशनल बिजनेस ये हो गया, सर्टिफाइड सीड, सर्टिफाइड फर्टिलाइजर्स, ये सारी चीज़ें मिलने लगी। अब जो बात निकल के आती है, व्हाट नेक्स्ट, अब हम क्या करें जिससे आगे बढ़ जाए। वो आगे जो बढ़ने की बात है, वो जो बात निकल के आती है कि PG का, प्रोड्यूसर ग्रुप का, FPO का, और आगे जो हमारी प्रोड्यूसर इंटरप्राइजेस हैं, जैसे हमने झलकारी लगा रखी है झांसी में, जैसे हमने बल्ली लगा रखी है झांसी में, जैसे हमने बुंदेलखंड के तमाम, इसके साथ साथ 5 प्रोड्यूसर कंपनीज बना रखी है जो मिल्क प्रोड्यूसर 3-3, 4-4 लाख लीटर दूध ये महिलाएं हमारी जा रही है कलेक्शन सेंटर में दे रही हैं। तो बहुत अपार संभावना है। हमारी इमेगो जो है, वो जो भी आपका वीडियो में आया था, फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाई है। अब उन्नाव से लेकर करीब 166 जगह जो हमारे इंटीग्रेटेड फार्मिंग क्लस्टर्स हैं जो महिलाएं चला रही है, इनमें हम फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने जा रहे हैं। PFME योजना में 10,000 लोगों से अधिक महिलाओं ने फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में काम किया है। अभी आप इंटरनेशनल ट्रेड शो जाएंगे, नोएडा में लगेगा, आप वहाँ देखेंगे ऐसी ऐसी महिलाएं राज्यपाल महोदया के सामने खड़े को बता रही थी कि साहब हमारा बनाया हुआ अचार जो है वो दिल्ली के 5 स्टार होटलों में जा रहा है। कैन यू इमेजिन दिस, कैन यू इमेजिन दिस। ड्रोन दीदी जब ड्रोन उड़ाती है, वो ऐसा उनके होम सेक्रेटरी सामने बोल रही थी, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और कितने उस पर काम फ्रीक्वेंसी पे चलता है। इवन आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ इट, कि किस फ्रीक्वेंसी उन्होंने 32 पे काम करता है, 32 RPM पे काम करता है या उस पे करता है। आई वॉज शॉक टू लिसन फ्रॉम हर, जो कि कहने लगी मैं इंटर पास हूँ सर, और उन्होंने सारा सेट किया। और आपको बताया, एक छोटा सा एग्जाम्पल और दूंगा, हमारे यहाँ इसका चल रहा है टेक होम राशन का, ये हम ICDS से चलाते हैं। अभी कल हम एक मुकदमा जीते हैं माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ में। वो मुकदमा केवल इसी बात पर था कि जज साहब जो थे, जो सिटिंग बेंच थी, वो पिछले 1 महीने से ये और जो कंपनियां जो पीछे से घुसना चाहती थी, पोंटी चड्ढा टाइप की एंड कंपनियां, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो 5,000 करोड़ के बिजनेस को, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बिजनेस महिलाओं के द्वारा SHG चलाया जा रहा है और इनके द्वारा ये टेक होम राशन जो महिलाओं को, एडोलेसेंट गर्ल्स को, लैक्टेटिंग मदर्स को और जो 0 से 6 साल के बच्चों को जो टेक होम राशन जाता है, फोर्टिफाइड मील, ये मील महिलाएं ना बना करके वो जो पुराना पंजीरी बनती थी जो उसको भैंसें खाती थी, वही व्यवस्था फिर से लागू किया जाए। उसके लिए बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों ने बहुत बड़े बड़े लायर्स को देश के हायर करके एक मुकदमा यहाँ कर रखा था, PIL कर रखी थी। हम लोग पिछले 15 दिन से जी जान लगा उसे भिड़े हुए थे और उसको जब हमने वहाँ खड़े होकर के सारे तर्क वितर्क रख करके ये बताया कि ये दीदियों का बनाया हुआ है, ये FSSAI लाइसेंस इनके पास में, ये इनके पास में NABL लैब के सर्टिफिकेट्स हैं ऐसा, और ये दीदियाँ पैकेजिंग करती हैं और आप ताज्जुब होंगी, वो दीदियाँ छोटे छोटे कारखाने चला रही हैं। वो ऐसे कारखाने हैं कि घर में काम करती हैं, वो 8 घंटे की शिफ्ट क्या करती हैं, एंड दे आर अर्निंग 8,000 रुपीज़ इन ए मंथ। और वी आर प्राउड इन टाउन से जब हाई कोर्ट को ये सब बताया, हाई कोर्ट का कल जजमेंट आया और पहले लग रहा था कि हाई कोर्ट वॉज वेरी एडवर्स कि दीदियाँ कुछ नहीं जानती, दीदियाँ कुछ नहीं कर सकती, दीदियों का सब काम जो सड़ा हुआ खाना पहुँचा रही हैं,
बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंच रहा है, ये सब रिट में लिखा हुआ था। जब हम लोगों ने कंट्राडिक्ट किया इन बातों को, साक्ष्य सहित कंट्राडिक्ट किया, तो कल जो जजमेंट आया दैट वाज नॉट अगेंस्ट अस। सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट द एम्पावरमेंट ऑफ वीमेन, वी simply want to ensure that whatever is supplied to the rural areas should be of nutritious value, it should be of quality, nothing else. Earlier they were, मतलब पूरे उससे इंटेंशन से लग रहा था कि हमको रिप्लेस कर दिया जाएगा और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दीदियाँ जो इस काम को 4000 दीदियाँ जो इस काम को कर रही हैं, राशन बना रही हैं, वही दीदियाँ स्वयं इसकी बेनिफिशरी हैं। उन्हीं, या तो वो गर्भवती महिलाएं स्वयं हैं या उनके बच्चों को पोषण मिल रहा है, वो दीदियाँ अपने बच्चों को कैसे खाना खराब देंगी। जब ये तर्क रखा गया तब कोर्ट को मैं कहना पड़ा कि ठीक है, ऑल राइट, इफ़ यू हैव गिवन विंग्स टू दीज दीदीज, लेट देम फ्लाई हाई इन द स्काई। उनको हवा में, आसमान में ऊंचा उड़ने दो, जितना ऊंचा उड़ सकती उड़ने दो। आई एम प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद दैट काइंड ऑफ वर्क वेयर वी थिंक ऑफ विमेन एम्पावरमेंट, वेयर वी लिव फॉर दैट एंड वेयर वी वर्क फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। ग्रेट न्यूज़, ये काफ़ी दिनों से चर्चा में था, ये जो हाई कोर्ट का बता रहे थे। तो ये एक बेसिकली ये वन ऑफ द चैलेंज है, मतलब जबकि सरकार ऐसा कुछ चाहती है, पैसा उपलब्ध है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी ताकतें हैं जो महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकती हैं। तो मैं विनोद जी आपके पास आना चाहूँगा। जनरली क्या होता है कि सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन शुरुआती दौर में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस करती हैं और वो बाद में बड़े प्रोग्राम के रूप में, पॉलिसी चेंज के रूप में सरकार में आता है। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन, एक उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि 2002-2003 से रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ और फिर 2019 में भारत सरकार ने इसे एक वृहद 7000 करोड़ के कार्यक्रम के रूप में लिया। तो जो चैलेंज की बात कर रहे थे उसी का रेफरेंस देते हुए अभी भी आपको किस तरह के चैलेंजेस या अपॉर्चुनिटीज़, दोनों की बात करूँगा मैं, सिर्फ नॉट लिमिटेड टू चैलेंजेस, लगती हैं महिलाओं को मार्केट एक्सेस करने के लिए? धन्यवाद निशी जी। ये एक वेरी पर्टिनेंट सवाल है और ये हम देख रहे हैं कि जर्नी रही है एसएचजीज़ की। ये जैसे शुक्ला जी ने इसको बहुत ही अर्ली स्टेज से बताया, जब SGSY से इसकी शुरुआत हुई थी। कुछ एक्सपेरिमेंट्स वहाँ पे हुए थे। इनफैक्ट कुछ इनिशियल एक्सपेरिमेंट्स हम लोग प्रधान में भी SGSY को लेके करते थे। उस दौरान से फिर SHG का मूवमेंट आया। SHG में महिलाओं का एक ग्रुप बने और क्रेडिट लिंकेज उसके माध्यम से होने लगा। जब हम SHG की एक अपार सफलता हम देखते हैं, यदि हम देश में देखें तो बहुत सारे SHGs बने हैं, बहुत सारी महिलाएं उनसे जुड़ी हैं और जैसे आप बता रहे थे 1 करोड़ महिलाएं यूपी में ही जुड़ी हैं, जो कि ये फिगर मेरे को पता नहीं थी, परंतु ये सुन के जान के बहुत ही खुशी हुई कि इतनी दीदियां हमारी इस मूवमेंट से जुड़ गई हैं। मगर इनका एक सक्सेस का एक मेन, यदि आप मार्केट के दृष्टिकोण से देखेंगे तो इनके SHGs के सक्सेस का एक मेन कारण था कि वो क्रेडिट मार्केट जो है गांव में, उसमें बहुत गैप था। जो ट्रेडिशनल मनी लेंडर्स हैं वो उसको कैटर करते थे, वो बहुत ही स्मॉल सेगमेंट को कैटर करते थे एट वेरी हाई प्राइस, क्योंकि कोई अवेलेबल नहीं था तो उनके प्राइसिंग बहुत हाई होती थी। नेचुरल है, जब डिमांड अधिक है और सप्लाई कम है तो उसकी आवश्यकता, उसका रेट बढ़ जाएगा। तो जब SHG आइडिया आया कि सेविंग्स एंड क्रेडिट को लेके हम लोन मिल सकता है हमको माध्यम से, तो आप देखेंगे उसकी अपार सफलता दिखाई देती है। और हम देख रहे हैं कि SHG मूवमेंट हैज़ रियली पिक्ड अप। और यदि आंकड़े देखें तो मेरे ख्याल से 30 लाख करोड़, हजार है ना, 30 लाख हजार करोड़ क्रेडिट मोबिलाइज हुआ है इस तरह से। तो ये एक दिखाता है कि इट वाज अ वेरी अनमेट नीड। और SHG नहीं, यदि आप MFI मूवमेंट्स को भी देखेंगे, MFI में भी इक्वलेंट अमाउंट जो ग्रामीण बैंक मॉडल पे चला है उसने भी इतना ही कंट्रीब्यूट किया है। सो इट्स अ ह्यूज मार्केट दैट वाज अनमेट। अब हम आते हैं कि FPO पे जब हम आते हैं, जब FPO की बात करते हैं
तो मार्केट एक्सेस, दीदियों को हमको यदि मार्केट एक्सेस देना है तो वो एक डिफरेंट बॉल गेम ऑल टुगेदर होता है। यदि हम एग्रीगेशन से स्टार्ट करें तो मार्केट इज़ ऑलरेडी देयर आर पीपल इन द मार्केट जो एग्रीगेट कर रहे हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं वो एग्रीगेट कर रहे हैं। और उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे भी जाएँ तो प्रोसेसिंग में जाएँ तो वहाँ पे मार्केट प्लेयर्स हैं, प्रोसेस कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं। उसके ऊपर जाएँ तो रिटेल में जाएंगे तो ब्रांडिंग के माध्यम से लोग बेच रहे हैं। तो ये देन बिकम्स द मेन बॉटलनेक कि हम प्रोडक्ट क्या लें और किस तरह से उसको मार्केट में उतार पाएँ। कि भी किसी भी एफपीओ के लिए नेबरहुड ग्रुप में बेचना है तो चलो ठीक है कि ठीक है मैंने बना लिया है, वो बेच लेती हूँ मैं, परंतु उसको यदि प्रॉपर ब्रांडिंग के साथ, कुछ हमने ब्रांडिंग के जरूर एग्जांपल देखे इसमें, इस शॉर्ट क्लिप में, परंतु वो करना एफपीओ के लिए बहुत ही एक कठिन है और चैलेंजिंग है और कॉस्टली है। तो आप देखेंगे कि अक्सर आप एफपीओज़ को वो B2B में जाते हैं या F2B कर सकते हैं। फार्मर से ख़रीदा और बड़े बिजनेस को भेजा। कोई बता भी रहे थे कि किसी कंपनी को हम सप्लाई करते हैं, हमारी जो एक एफपीओ वो भी एक सप्लाई करती है, बड़ी कंपनी को करती है, परंतु वो जो मार्केट का जो मज़ा है, जो मार्केट की मलाई है, वो तो नहीं मिलती। और फिर हम क्या compete करते हैं B2B में, यदि F2B भी कर रहे हैं तो हम compete करते हैं उस बिचौलिए से जो ग्रामीण क्षेत्र में कलेक्ट करते हैं और जो आड़तिया को देते हैं, और आड़तिया से बड़ी कंपनी सब आड़तिया से खरीदती हैं, वो आईटीसी हो या कोई और हो, वो सब आड़तियों को प्रेफर करते हैं कि वहाँ से वो ख़रीदें और वो फिर बेच सकें, उनको एग्रीगेटेड माल मिलता है। सो ये जो पूरा डायनेमिक है, इट इज़ ए वेरी एक्सप्लॉयटेटिव डायनेमिक। वो उसमें आप यदि एफपीओ यदि उसमें घुसता है तो उसके मार्जिन इतने थिन हैं, और एफपीओ ऑब्वियसली महिलाओं का संगठन है तो वो मैल प्रैक्टिसेस नहीं करेगा, तो उसका इतना मार्जिन थिन होता है कि उसको सर्वाइवल, इकोनॉमिक सर्वाइवल भी अपने में एक बड़ा प्रश्न हो जाता है। हमने किया था, मक्के की ट्रेड करी थी, मक्का कलेक्ट किया दीदियों से और उसको बेचा, उसमें 1-1.5% का हमको मार्जिन मिला। 1.5% में आप खर्चे भी नहीं निकाल पाओगे। जब तक आपको मार्जिन 7-8% नहीं मिलता है तो आपका खर्चा नहीं निकाल पाएंगे। इसी प्रकार हमने वीट का किया, गेहूँ हम परचेज करते हैं, हमारी कंपनी एक हमने प्रमोटेड है, वो परचेज करती है और आईटीसी को बेचती है। आईटीसी फॉर सम रीज़न वो थोड़ा बेटर रेट दे देती है, परंतु हम नॉर्मल मार्केट में जाएं तो वहाँ पर सर्वाइव नहीं कर सकते जब तक ये एक्सटर्नल सब्सिडी हमको नहीं मिले। यानी हमारी कॉस्ट, औरों की कॉस्ट, जो प्रोफेशनल कॉस्ट है वो कोई और दे रहा है तब तक तो चल रही है ना, परंतु यदि वो उनको डायरेक्ट करना पड़े तो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग है। तीसरी चीज़, हम एक और चैलेंज हम देखते हैं और प्रायः है कि प्रायः हम जो मार्केट में उतरते हैं प्रोड्यूस को लेके, तो दीदियाँ जो बना रही हैं उसको लेके मार्केट में जाने की कोशिश करते हैं। ये अपने में इकोनॉमिकली अनसाउंड प्रिंसिपल है। भाई आपके पास जो है उसको बेचो, या जो मार्केट में ज़रूरत है उसको आप बनाओ। तो बिजनेस प्रिंसिपल जो प्राइवेट सेक्टर काम करता है वो तो इस पे काम करता है कि जो मार्केट में ज़रूरत है मैं वहाँ बनवाता हूँ, वो प्रोक्योर करता हूँ। परंतु ये जो बिजनेस प्रिंसिपल का जो फंडामेंटल इशू है कि मार्केट से बैक एंड तक जाना, मार्केट से बैक वर्क करना, ये हम एफपीओ में नॉर्मली वायलेट करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि हमारा जो इमोशनल अटैचमेंट है हमारी दीदियों से है, हमारे एसएचजी से है, हमारे सीएलएफ से है, तो हम और उसकी सक्सेस भी है, जैसा आप बता रहे थे, इट्स ए ह्यूजली सक्सेसफुल प्रोग्राम। परंतु जहाँ हम बिजनेस में आते हैं तो हम इस फंडामेंटल प्रिंसिपल को वायलेट कर लेते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि एक और बात जो है वो ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अपने एसएचजी, बीओ, सीएलएफ और जैसा आपने कहा ब्लॉक,
उस लेवल पे जाके उन्हीं को अलाइन करते हुए एफपीओ बनाए। अब इसमें भी एक फंडामेंटल प्रॉब्लम है। फंडामेंटल प्रॉब्लम ये है कि यदि हम कोई एक प्रोडक्ट पकड़ें, यदि मान लो हमने कहा कि हम दूध की, अब दूध की बात करते हैं, सब दीदियाँ दूध नहीं देती, सबके पास गाय भैंस नहीं है, तो अब ये एक फ्रिक्शन जनरेट होता है। जिनके पास है उनको तो चलो फ़ायदा है, जिनको पास नहीं है गाय भैंस तो उनको लगता है हम वंचित हो रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट है कि हम उसको सक्सेस पे बिल्ड जब करते हैं तो कहीं वो एक फ्रिक्शन जनरेट हो जाता है। और इसी के लिए हम देखेंगे एफपीओज नॉर्मली कमोडिटी बेस्ड हो गए हैं। जो भी सक्सेसफुल हैं, ये दूध की कोऑपरेटिव है, इट्स अ कमोडिटी, एक सिंगल पे काम करती है। आपने भी बनाई होगी तो सिंगल हल्दी की मान लो कोऑपरेटिव है, वो हल्दी पे काम करती है। तो वो अब उस स्ट्रक्चरल जो इशू है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। और आप कुछ ने बताया कि आप लोग कर भी रहे हैं थ्रू प्रोड्यूसर ग्रुप्स। तो देन यू हैव टू गो बैक टू द विलेजेस और उन दीदियों के संग फिर से एक स्ट्रक्चरल मुद्दे पे काम करना होगा, फिर से संगठन बनाना पड़ेगा प्रोडक्ट वाइज। जो कि आपने पहले क्रेडिट की आवश्यकता उसको लेके बनाया था, परंतु यू हैव टू, वो ठीक है, उसी में से दीदियों को लेके आपको प्रोड्यूसर ग्रुप्स बनाने पड़ेंगे और फिर उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। फिर हमें देखना पड़ेगा मार्केट में क्या है, बैक एंड पे उसको ले जाना पड़ेगा। तो ये जो कहानी है ये आई थिंक इट इज़ स्टिल इवॉल्विंग, ये हमारे चैलेंजेस हैं। और जैसे जैसे हम ये एक्सपीरियंस आएगा हमको, हम इवॉल्व करेंगे और इसको भी आई एम श्योर वी ओवरकम। ये तो चैलेंजेस हैं जिसको ओवरकम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू विनोद जी। सो एक दो तीन चीज़ें जो स्पेसिफिक समझ में आई, एक तो कि प्रोड्यूसर कंपनी जो है, क्योंकि बहुत ही स्पेसिफिक कमोडिटीज़ में अगर फिक्स हो जाती है तो वो दिक्कत है, मतलब तो आई थिंक डाइवर्सिफाई करने का ज़रूरत है। मतलब हर चीज़ को या हर यूनिट को एक स्ट्रैटेजिक बिजनेस यूनिट टाइप करना है। दूध ऐसा है कि रोज़ है तो सुबह शाम है, इसलिए उसकी अलग एक कहानी है, लेकिन कमोडिटीज़ की कहानी अलग है और उस कमोडिटीज़ में भी फिर डिफरेंट डाइवर्सिफिकेशन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। एंड तो दूसरा चीज़ है प्रोड्यूसर ग्रुप को लिंक करना, वो आई थिंक वो एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर सकता है डाइवर्सिफाई करने के लिए एफपीओ के लिए। मैं पद्मश्री उपम शंकर पांडे जी से बात करना चाहूँगा। सुबह आपने काफ़ी सारी चर्चाएँ की थी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ आपसे कि इस तरह के चाहे समूह हो या हम जो मार्केट फेसिंग कृषि किसान महिला किसान उत्पादक संगठन की हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, वो बैक एंड में क्योंकि क्वालिटी प्रोडक्शन जो होना है, जैसे आपने बासमती की सुबह बात की थी या जिस तरीके से गवर्नमेंट एमएसपी की बात की थी, वो चेंज ये इस तरह के महिला किसान उत्पादक समूह कैसे ला सकते हैं, अगर आप उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो। अभी आदरणीय शुक्ला जी ने बहुत विस्तार से, जैन साहब ने, बहन ने विस्तार से इसके बारे में काफ़ी बताया। आज से करीब 35 वर्ष पहले जब यूसुफ जी पूरी दुनिया के सामने सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात करने के लिए निकले थे, फिर नोबेल मिला उनको, नोबेल पुरस्कार मिला, बांग्लादेश के वो राष्ट्रपति हैं आजकल वहाँ। आप उस समय एक बड़ा दिल्ली में विज्ञान भवन में एक कार्यक्रम हुआ, कई प्रकार की चिंताओं से निकलते हुए आज जो दीदियों के पास में स्वयं सहायता समूह पहुंचा है और बहनें जो बाल्मी जैसी संस्था की अभी आदरणीय शुक्ला साहब बात कर रहे थे, सफल मॉडल जो बने, 1 करोड़ बहनों को जोड़ना, 60,000 समूह तैयार करना उत्तर प्रदेश सरकार का बहुत बड़ा काम है। इसके लिए जिसने भी भागीरथी प्रयास किया है, हम उन सबको धन्यवाद देते हैं। मैं कहता हूं कि ये पहला ऐसा प्रयोग है जिसकी मालिक स्वयं बहनें हैं। आप जिला पंचायत अध्यक्ष बना दीजिए, बहन मालिक नहीं है। ब्लॉक प्रमुख बना दीजिए, बहन मालिक नहीं है। एमपी बना दीजिए, पार्लियामेंट में बहन मालिक है, लेकिन बाकी निधि कोई और लिख रहा है। ये जो प्रयास है उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, आप सब मिलकर के कर रहे हैं, टीआरआई जैसी संस्था काम कर रही है। मैं चूँकि मेरा विषय पहले बहुत इस पर काफ़ी मैंने काम किया, मोहन धारिया साहब थे, अन्ना हजारे साहब थे, पद्म भूषण निर्मला देश पांडे जी थी, नानाजी देशमुख जी थे,
अग्निवेश स्वामी अग्निवेश थे, इला भट्ट थी, इला बहन थी। तो एक ज़माना था जब शुक्ला साहब ने जिस ज़माने की बात करी है, तो मैं ऐसा मानता हूँ, ये बहुत ही ये मान सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मन का विषय भी है, माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी के मन का विषय भी है। और बहनों को अगर हमें समाज में आगे लाना है तो सबसे पहले बहन के पास ही हमारे चाबी घर की रही है। सबसे पहले मैंने आपसे सुबह भी ये बात कही थी आपसे कि मैं दिव्यांग हो गया था, और मैं दिव्यांग हुआ तो मेरी माता जी ने कहा कि अच्छा हुआ। उस दिव्यांगता के कारण मैंने 75 दिन जंतर मंतर में धरना दिया और विकलांग अधिनियम एक्ट 95 एक्ट आया, और 3% का जो आरक्षण इस उत्तर प्रदेश में मिला उसकी मैंने हाई कोर्ट में रिट करी थी। मैंने उस बारे में चर्चा नहीं करी। ये जो 3% का रिट आया विकलांग कल्याण विभाग, मेरे धरने पर, मैं यहाँ 42 दिन धरने में बैठा था विधानसभा के सामने, जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी, नेत्राम साहब बिल्कुल नए नए अधिकारी आए थे, नसीम जैदी साहब यहाँ सेक्रेटरी थे, और जब मैं आया तो लोग कह रहे थे, भगा रहे थे, मैं नहीं हटा। तो आप जब मानो जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा भी बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। ये बहनों ने जो काम किया है, अभी हम आपको बहुत सारी चीज़ें हम आपके साथ साझा कर रहे थे। हम गाँव से आए हैं, निकल के आए हैं, आजकल हम भारत सरकार की जूरी के मेंबर हैं। मुझे खुशी है कि मैं उस गांव से आया हूँ। मेरी माँ शिवाजी को शिवाजी बनाने वाली माँ है, और गोस्वामी तुलसीदास जी को तुलसीदास बनाने वाली उनकी धर्मपत्नी है। इस समाज में जो कुछ भी बढ़ा है, कोई व्यक्ति भी आगे बढ़ा है, कुछ भी बना है, उसमें बहनों का और दीदियों का योगदान है। इसलिए मैं बहनों को प्रणाम करता हूँ, सैल्यूट करता हूँ, आपको नमन करता हूँ, और आपके चरणों का बंधन करता हूँ कि आप अद्भुत काम कर रही हैं। हम इस जो स्वयं सहायता समूह है, कंपनी एक्ट में एफपीओ आया, इसके पहले कोऑपरेटिव आया, सहकारी समितियाँ आईं, सोसाइटी आईं, बहुत सारी चीज़ों का प्रयोग हुआ है। लेकिन यह सबसे अच्छा प्रयोग है ऐसे अधिकारी जो शुक्ला जी जैसे अधिकारी हैं, ओझा साहब जैसे अधिकारी हैं, बड़े बड़े अधिकारियों ने जीवन लगा दिया है। अब परिणाम दिखा है। टीआरआई जो काम कर रही है, इस पे बोलने के लिए बहुत समय चाहिए, समय की अपनी मर्यादा होती है। जो चलता है उसका भाग्य चलता है, जो दौड़ता है उसका भाग्य दौड़ता है, जो सोता है उसका भाग्य सोता है, जो रोता है उसका भाग्य रोता है। इसलिए चरैवेति 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 चलते रहिए। बहनों का योगदान पर्यावरण के प्रदूषण को रोकने में बहुत बड़ा है। हमारी बहन ही रोकती है। हमारी माँ सुबह 4 बजे जगती थी, हम 4 भाई बहनों को तैयार कराती थी, हम लोग स्कूल जाते थे, माताजी भोजन देती थी, नाश्ता देती थी, कपड़े धोती थी, हमारे पूरे घर को मंदिर बना हुआ था। आजकल हमारे घर में कई लोग परिवार में हैं, लेकिन घर मंदिर नहीं है, घर घर है। तो अभी जो आपने कहा था कि विवाह की बात, एक व्यक्ति कह रहे थे, मित्र अच्छी बात कही थी, 2 व्यक्तियों का विवाह ना हो, 2 परिवार का विवाह हो, 2 व्यक्ति का मिलन हो, समूह की दीदी एक हों, समूह की दीदी एक हों। आपको लड़ाने की कोशिश की जाएगी, आपको तोड़ने की कोशिश की जाएगी। जब 10 बहनें पैसे वाली बनेंगी, जिन्होंने काम नहीं किया वो तोड़ेंगी। टूटना नहीं है, जुड़ना है और आगे बढ़ना है, लक्ष्य तय करना है, और अपनी बेटी को उद्योगपति बनाना है, करोड़पति बनाना है, अपने बेटे को आगे बढ़ाना है। परिवार की मुखिया हैं, आप ही से देश चलता है। इसी लक्ष्मी मैया बहन को प्रणाम। धन्यवाद पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी। जैसा आपने बोला समय की मर्यादा है, तो मैं लास्ट मतलब शिप्रा जी से शुरू करके फिर जन्मेजय जी, फिर विनोद जी, और लास्ट आपसे क्या, और थोड़ा शॉर्ट में ही रखने का, मतलब संक्षिप्त में रखने का, क्या 1 से 2 ऐसी चीज़ें हैं जो अभी जिसके लिए समय है, जिसे करना चाहिए, और जिसमें जो ट्राइफोकल हमारा अप्रोच हम लोग बोलते हैं, सभी लोग इसको मानते हैं, समाज, सरकार और बाज़ार को साथ में काम करने के लिए, उसके लिए क्या इमीडिएट एक्शन हम लोग फोर्सी करते हैं जो विमेन के मार्केट एक्सेस, विमेन को इकोनॉमिक एजेंट के रूप में, और विमेन की अपनी एजेंसी इन सब के उसमें खुद की डिसीजन मेकिंग पावर, कंट्रोल ओवर डिसीजन मेकिंग, इस सब में हेल्प कर सके और आगे बढ़ा सके।
मुझे लगता है निशी, मैं जो हूँ खास करके महिलाओं के ज़मीन पर एक्सेस, कंट्रोल, ओनरशिप, उसके लिए काम करती हूँ एक बड़े स्तर पे। और मैं समझती हूँ कि अगर हम महिला संसाधनों की बात करते हैं तो ज़मीन एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, न केवल आर्थिक संसाधन बल्कि सामाजिक और हमारी पहचान से जुड़ा हुआ। तो मैं उसको एक फाउंडेशनल रिसोर्स की तरह देखती हूँ, क्योंकि हमारी पहचान, हमारा एड्रेस, हमारा सामाजिक ताकत बहुत हद तक ज़मीन के साथ हमारा क्या रिश्ता है उससे जुड़ी होती है। और बहुत सारे अध्ययनों में ये पाया गया है, अपने देश में भी और बाहर भी, कि जहाँ ज़मीनों का रखरखाव ज़्यादा बेहतर होता है, गवर्नेंस ज़्यादा बेहतर होती है, वहाँ पर रूरल इकॉनमी भी ज़्यादा फ्लॉरिश करती है और महिलाएं भी। तो मैं समझती हूँ कि ज़मीन एक ऐसा संसाधन है जिसके ऊपर की हमें और काम करी जाने की ज़रूरत है। एफपीओ, प्रोड्यूसर कंपनी, एसएचजीज जैसे जो संगठन, संस्थाएं, प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एकदम मैं कहूँगी वाजिब, जायज़, खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिनके माध्यम से ये काम करा जा सकता है। और मैं आपके साथ पश्चिम बंगाल का उदाहरण थोड़े छोटे में शेयर करूँगी। पश्चिम बंगाल में जो SRLM है, वहाँ आनंद धारा नाम से वो रजिस्टर्ड है और उसके अंदर करीब 1 करोड़ 20 लाख महिलाएं उसकी सदस्य हैं। तो वहाँ पर हम लोग पिछले 2013-14 में हमने महिलाओं के लिए लैंड लिटरेसी कार्यक्रम को SRLM में इंटीग्रेट करा। तो महिलाएं जो थी, ज़मीन से जुड़ी हुई मूलभूत जानकारी, ज़मीन के क्या कागज़ होते हैं, क्या परेशानी हो तो क्या कहाँ जाना चाहिए वगैरह, वो लेने लगी। उससे हुआ ये कि जब महिलाओं को ये जानकारी मिलने लगी तो उनकी परेशानियां भी सामने आने लगी। हमारे यहाँ पे ज़मीनों के रिकॉर्ड पता नहीं कितने पुराने, रहता कोई है लेकिन ज़मीन दादाजी के भी दादाजी के नाम होती है और ये नहीं पता होता कि किस टुकड़े का इस्तेमाल कौन कैसे कर सकता है। मेरे पास ज़मीन के कागज़ होते हैं तो लगता है यहाँ पे ज़मीन है, लेकिन खेत में जाओ तो पता लगता है यहाँ तो है ही नहीं, यहाँ तो तालाब है, मेरी ज़मीन कहीं और है। तो ऐसे बहुत से समस्याएं जब लेके महिलाएं आने लगी तो उन महिलाओं ने खुद ये एहसास करा कि क्या हम अपनी इन ज़मीन से जुड़ी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, हम खुद ही सीख सकते हैं। आजकल सारे राज्यों में ज़्यादातर जगह ऑनलाइन रिकॉर्ड्स है और ऑनलाइन सेवाएं हैं। तो SRLM और पश्चिम बंगाल में रेवेन्यू विभाग के साथ मिलकर हम लोगों ने 2020 में वहाँ पर फैसिलिटेशन सेंटर शुरू करे, जो कि महिलाओं के द्वारा चलाए जाने वाले, जिसमें कि हर एक क्लस्टर, सभी लोग यहाँ पे समझते हैं SHG क्लस्टर फेडरेशन के मॉडल को, तो हर एक क्लस्टर से कुछ महिलाएं खुद ही चुनी, जो कि 3 से 4, कहीं कहीं पे 6 महिलाएं, जिन्होंने कंप्यूटर की ट्रेनिंग ली, ज़मीन से जुड़े समस्याओं की ट्रेनिंग ली। और पहले पायलट में हमने 6 ऐसे सेंटर खोले जहाँ पर कि महिलाओं ने लैंड से जुड़ी सर्विसेज देना शुरू किया, जिसमें कि खसरा खतौनी की जानकारी है, लैंड रिकॉर्ड अपडेशन है, इनहेरिटेंस में नाम जोड़ना है, रिकॉर्ड करेक्शन है, वगैरह वगैरह वगैरह। और उन 6 सेंटर्स का इतना खूबसूरत और बढ़िया प्रयोग रहा कि उसके बाद तुरंत ही दूसरे साल में 40, फिर 100 और आज की तारीख में वेस्ट बंगाल में करीब 300 इस तरह के सेंटर है, सिर्फ महिलाओं के द्वारा ऑपरेटेड, जो कि लैंड से जुड़ी सर्विसेज पेमेंट बेसिस पर देती हैं। और राज्य सरकार ने, जो वहाँ का SRLM और रेवेन्यू विभाग है, मिलकर इसके ऊपर काम करते हैं। उन्होंने ही पूरा रेट कार्ड तय करा हुआ है किस चीज़ की कितनी सर्विस होगी। और मुझे लगता है ये एक ऐसा मूलभूत बदलाव है। अभी आंकड़े तो, क्योंकि ज़मीन से जुड़े ओनरशिप के आंकड़े हमारे पास पुराने हैं, बहुत सालों से वो नहीं हुआ है, तो आंकड़े वहाँ पे अभी भी जो सेंसस के आंकड़े हैं वो 3% ओनरशिप महिलाओं के बताते हैं। लेकिन इतने साल काम के बाद अगर जब हम रेवेन्यू विभाग के पास आंकड़े देखते हैं तो रजिस्टर्ड ज़मीनों में वो ओनरशिप भी अब 15% पहुँच गई है। और मुझे ज़्यादा खूबसूरत बात ये लगती है कि जो मैं सुबह पहले अपनी बात में कह रही थी कि किस तरह मंडियाँ पुरुषों के द्वारा पुरुषों का स्थान है, इसी तरह जब हम रेवेन्यू विभाग में भी जाते हैं तो वो भी पुरुषों का स्थान है। एक महिला के लिए रेवेन्यू विभाग को नेविगेट करना ही मुश्किल है, किसी से बात करना तो बहुत दूर की बात है। पर पूरे राज्य में एक बड़े स्केल पर काम होने से मैं कहूँगी फ़ायदा ये दिखा कि वो पूरा रेवेन्यू विभाग महिलाओं की भाषा सीख गया,
कि महिलाओं को क्या ज़रूरत है, उनसे कैसे बात करनी है, उनकी बात को कैसे रिस्पॉन्ड करना है। और ये हमने शुरुआत में सोचा नहीं था कि ये होगा। हमने सोचा तो वुमेन लैंड लिटरेसी और लैंड राइट सोचा था, लेकिन महिलाओं ने इतना, मुझे लगता है कि एक तरह से एक अद्भुत प्रयोग है, क्योंकि ज़मीन को एकदम, मैंने उत्तर प्रदेश और बिहार में मैं ऐसे भी महिलाओं से मिली हूँ जिनको ये जानकर भी अचरज हो जाता है कि अच्छा, हमारे नाम पे भी ज़मीन हो सकती है। इज़ इट इवन पॉसिबल कि ये है भी कहीं पे ये पॉसिबिलिटी कि हमारे नाम पे ज़मीन हो। वहाँ पर जिसको हम ट्रू सेंस में एंजेंडरिंग गवर्नेंस कहते हैं, पूरे व्यवस्था का के अंदर महिलाओं का प्रवेश हर स्तर पे, वो मैंने पश्चिम बंगाल में होता हुआ देखा है। और मुझे, मैं फिर से रिपीट करूँगी, ज़मीन वो एक महत्वपूर्ण एंकर लगती है जो कि इन सारी चीज़ों को आपस में जोड़ सकती है और महिलाओं को ज़्यादा सशक्त बना सकती है। जी, आप ही की बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि SDG गोल 5 जो है वो जेंडर इक्वलिटी का है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। और मैं SDG गोल 1 का नोडल था, इसलिए SDG सारे गोल्स आपस में जुड़े हुए थे। तो SDG गोल 5 में यूपी में भी हम लोगों ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जोड़ा है। हालांकि उनका काम था, हमारा यहाँ का क्या काम है वो शायद वो आप ही के यहाँ से रेप्लिकेट हुआ, वेस्ट बंगाल का जो मॉडल था, सक्सेसफुल मॉडल। और जहाँ तक अभी आई एम नॉट अवेयर एंड अपडेटेड राइट नाउ, लेकिन जेंडर इक्वलिटी में एक ये बहुत बड़ा इशू होता है कि खतौनी में महिलाओं के नाम जोड़े जाएं, और सरकार इस पर बहुत गंभीरता से विचार कर रही है। अभी आई एम नॉट श्योर कि हो गया या नहीं हो गया, लेकिन इट इज़ इन प्रोसेस ऑफ डेलिब्रेशन, सीरियस डेलिब्रेशन अभी चल रहा है यूपी में। और एक अभी जैसे घरौनी आ गया यहाँ पर, घरौनी एक बहुत बड़ा इशू था। ये भी नया यूपी का जो है, यूपी से चला पूरे देश में। आबादी का कोई नक्शा नहीं होता था, आबादी के नक्शे अब आ गए, लोगों का कितना पोजीशन है। घरौनी आ गई, घरौनी में उस पर नाम आया। और जो जेंडर इक्वलिटी में सबसे ज़्यादा काम अगर किसी विभाग ने किया है अपार्ट फ्रॉम WCD डिपार्टमेंट, उसमें ग्राम विकास विभाग का बड़ा रोल है यूपी में एज सच। क्योंकि हमने, अगर हम मनरेगा की बात करें तो हमने 14% से जर्नी शुरू करी थी मनरेगा में। आज हमारे यहाँ 40% प्लस है विमेन का कंट्रीब्यूशन। मैंडेट कहता है मनरेगा एक्ट कि 33% महिलाएं जो श्रमिक हैं वो 33% होनी चाहिए। हम 33% बार को पार कर चुके हैं, अब ये अराउंड 40% है। ये एक सेंसिटाइजेशन किया गया, महिला मेट हमने लिखा, ये महिला मेट का कंसेप्ट आया। अब महिलाओं को उनकी जो SOP बनाई गई कि उनको कितनी खंती खोदनी है, ये काम किया गया। तो इससे महिलाओं की भागीदारी बढ़ी। दूसरा जो एक बहुत बड़ा एक पैराडाइम शिफ्ट आई, वो आई ये प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से, जिसमें आया कि अब हम महिलाओं को इनवेरिएबली हम महिलाओं के नाम से ही आवास देंगे। तो जो जेंडर सेंसिटाइजेशन इन चीज़ों पर, इसमें हमारे जो सरकार की जितनी भी योजनाएं आ रही हैं उसमें जेंडर इक्वलिटी को ध्यान में रख करके महिलाओं को, जैसे आपने कहा ना जेंडर सेंसिटाइजेशन, ये बहुत बड़ा शब्द है। अब हम जिस विभाग में काम कर रहे हैं वहाँ दिन भर हमें उन्हीं से जुड़ी हुई समस्याओं से ही आत्मसात होना है। तो उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए ये सारे विभाग मिलकर काम करें। यूपी में ए डे विल कम जब खतौनी पे इनका नाम आने लगेगा। मैं ख़त्म कर रहा हूँ अपनी बात। FPO पर बार बार बात ये निकल के आ रही थी, हमारे पास बाजार भी है दीदी। अभी आपने इमेको का इस वीडियो में देखा है, उपभोक्ता भी दीदी और तैयार करने वाली भी दीदी। तो ऐसे कई कन्वर्जेंस मॉडल हो सकते हैं जहां हमारा अगला स्टेप इसी पर आएगा कि कैसे हम फूड प्रोसेसिंग के यूनिट PFME का लाभ ले सकें। हमारे यहाँ प्रेरणा कैंटीन चल रही है, 1800 जगह से अधिक हम दीदियों का बनाया हुआ खाना हॉस्पिटल्स में पहुँचा रहे हैं, इंडोर पेशेंट्स को पहुँचा रहे हैं। हम कैंटीन या जो भागीदारी भवन है समाज कल्याण विभाग का, यहाँ हम IAS-PCS की ट्रेनिंग लेने बच्चे आते हैं। यहाँ हम स्कूलों में, कॉलेजेस में, मैं तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी अब आज यहाँ बैठा हूँ, यहाँ भी अब 1-2 यहाँ के विजी साहब मैडम से मिल करके अब हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ भी 2-3 कैंटीनें हम लोग हथियाएँ, कब्जाएँ, और यहाँ दीदियाँ ही हमारी इस जगह पर एक्सेस करें। यहाँ भी कैंटीनें दीदियों के द्वारा शुरू हो, दीदी कैंटीन। तो और वो दीदी कैंटीन जब यहाँ शुरू होगी लखनऊ यूनिवर्सिटी में, तो एक हमारा भी एक नया स्टेप निकल के आएगा। यही जो दीदियों का जो रॉ मटेरियल है, जो इनको आटा लेना है, गेहूँ लेना है, बाकी चीज़ें, बेसन लेना है, हल्दी लेनी है, ये इसके सप्लायर भी FPO हो सकते हैं। ये वहीं उन्हीं से लिया, उन्होंने दिया। कोल्ड प्रेस्ड हमारे यहाँ सरसों का मस्टर्ड ऑयल बहुत जगह दीदियाँ निकाल रही हैं, काम कर रही हैं। वो सारी खपत तमाम ऐसी कैंटीनों में हो सकती है। हम इस पर काम कर रहे हैं कि कैसे हमें अपनी एक
इसको क्लोज्ड इकोनॉमी तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम ये कह लेंगे कि हमारे दीदियों का प्रोड्यूस जो है वो दीदियों से ही, इसके बायर और सेलर सब आपस में ही हो सकते हैं, और इस कंसेप्ट पे काम तेजी से चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। विनोद जी, आपके लास्ट फ्यू कमेंट्स की क्या एक या दो स्टेप्स ऐसे हो सकते हैं क्विकली, एंड फिर मैं उमर शंकर जी से रिक्वेस्ट करूँगा। मेरे हिसाब से एक बाजार व्यवस्था, एक जो कॉरपोरेट वाली व्यवस्था है, वो आप देखेंगे कि उसका एनरोड बहुत अधिक मार्केट में पूरा छाया हुआ है। अभी परमशी जी ने एक उदाहरण भी दिया था कि पानी की बोतल गांव-गांव में अब पहुंचने लगी। जो फ्री रिसोर्स होता था वो मार्केटाइज हो गया है। ये जो प्रक्रिया है, अब यही देखिए ना, आप गांव में देखिएगा वो चक्की रिप्लेस हो रही है और पता चला आईटीसी का आटा वहाँ पहुँच रहा है। सो ये जो कॉर्पोरेटाइजेशन का जो मार्केट में पूरा जो वर्चस्व है, वो कैपिटल्स के माध्यम से है और वो ब्रांडिंग के माध्यम से, और लोगों की सोच बदलने के वो बदल देते हैं। मैगी आप जानते हैं कि आज से 20-25 साल पहले आई थी, अब घर घर में वो पाई जाती है, बच्चे पसंद करते हैं। तो ये मार्केट है जो कॉरपोरेट मार्केट जो है। इसके अगेंस्ट एक और मार्केट है जो शुक्ला जी ने मेंशन किया कि नेबरहुड मार्केट। वी कैन हैव एक्सेस टू, हम अपनी दीदियों को इस कैंटीन चलाएं। So there is a value in that, a value in वो प्रोडक्ट लें जो जिसमें श्रम है, वो प्रोडक्ट लें जो गांव से डायरेक्ट आ रहा है। सो ये जो चेंज इन माइंडसेट है, ये जब तक नहीं होगा हमारी दीदियां, हमारे रूरल एरियाज, हमारे रूरल एंटरप्रेन्योर्स मार खाते रहेंगे, एंड दे विल बिकम एजेंट्स फॉर दिस कॉर्पोरेट्स। जैसे हम भी बने हुए हैं, हमारी एफपीओ है, गेहूं फार्मर से लेती है, आईटीसी को बेचती है, आईटीसी फिर वही आटा बना के हमारे किसानों को बेच रही है। सो हम भी जो एग्रीगेटर बन के रह जाएंगे फॉर लार्ज कंपनीज, ये तो जो है ना, आई थिंक जो बीच में स्कम रह जाता है वही हमको मिलता है, दीदियों को मिलता है। सो इस पे काम करने की ज़रूरत है, और ये मार्केट में अधिक बात करने की ज़रूरत है कि देयर इज़ एथिकल पार्ट टू द मार्केट दैट वी शुड फोकस ऑन। सो दिस आई थिंक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। थैंक यू सर। परमश्री उमा शंकर पांडे जी। एक बड़ा भारत सरकार ने एक निर्णय लिया, राज्य सरकार ने निर्णय लिया, राशन कार्ड बहनों के नाम पर शुरू हुआ। सबसे महत्वपूर्ण बात ये आई। और दूसरी बात ये है कि किसान केवल खेती करने वाला ही किसान नहीं है, हल बनाने वाला भी किसान है, बर्तन बनाने वाला भी किसान है, बाल काटने वाला भी किसान है, इस्त्री करने वाला भी किसान है। हमारे यहाँ अंग्रेजों ने किसान शब्द दिया था, हमारे हुनरमंद शब्द था। तो मैं मानता हूँ, समय की मर्यादा है, हमें बहनों को सशक्त करने के लिए अपने अंदर से भी पहले भाव जगाना होगा। जब हम अपनी बेटी को और बेटे को बराबर समझेंगे, तब हम आगे जा कर के, जिन बहनों की बात कर रहा हूँ मैं, बहनों के सामने बड़ी जिम्मेदारियाँ, चुनौती भी हैं। मैं बहनों से 2-3 अपीलें करने वाला हूँ। एक तो बहनों से कहने वाला हूँ, आपकी 1 करोड़ बहनों से, कि पानी बचाना है, पेड़ लगाना है, नशे से मुक्त कराना है। आप ही लठ उठाइए नशे से मुक्त कराने के लिए। और रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, प्रतिदिन उत्तर प्रदेश में 400 एक्सीडेंट होता है, 100 लोगों की जान जा रही है। 18 से 30 साल के बच्चे हैं,
हेलमेट नहीं लगा रहे, नशे की तरफ जा रहे हैं। बहनों, आपकी जिम्मेदारी बहुत है, बहुत काम करना है आपको। इसलिए आपको समूह भी चलाना है और समाज भी चलाना है, और अपने बेटे को और बेटी को लक्ष्मीबाई बनाना है और शिवाजी बनाना है। जब मैं बच्चों के साथ बात करता हूँ विश्वविद्यालयों में, IIT, IIM में, तो मैं समझता हूँ कि मेरे सामने स्वामी विवेकानंद जी बैठे हैं, मीराबाई बैठी हैं, मैं उनसे संवाद कर रहा हूँ, और आप बहनें बैठी हैं, तो मुझे लगता है कि साक्षात लक्ष्मी जी बैठी हैं, दुर्गा जी बैठी हैं, मुझे कृपा मिलेगी आपकी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो हमने एक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन क्या काम कर रही है, पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी ने बताया, वो अकेले ही बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं। एक इंटरनेशनल NGO जो विमेन राइट्स पे काम कर रही है, और सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार के साथ मिलके SRLM मार्केट एक्सेस पे, विमेन इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पे क्या काम कर रहा है। काफ़ी सारी एनरिच चीज़ें थी, बट बहुत हमारे पास सॉल्यूशंस भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। सॉल्यूशन हमने उन 10 लाइट हाउस FPOs के माध्यम से देखे जो आपने वीडियो में देखा, और उस चीज़ को अभी 70 FPOs में और 30,000 महिलाओं के साथ में UPSRLM आगे लेके चल रहा है। तो उम्मीद है कि ये सेशन काफ़ी एनरिचिंग रहा होगा। काफ़ी हम लोग डिलेड थे, ऑब्वियसली हमने सोचा था कि कुछ प्रश्नोत्तर भी करेंगे, लेकिन वो नहीं हो पाएंगे, तो इस सेशन को हम लोग एंड पे लेके आते हैं। एक बुक लॉन्च हम लोग कर रहे हैं सेशन में, यानी क्वेश्चन हम ले नहीं पाएंगे, सॉरी। आप जब अभी हम सभा विसर्जित करेंगे, तब आप जिनसे पूछना चाहते हैं उनसे डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, समय का अभाव है, आप इंडिविजुअली पूछ लीजिएगा, सॉरी। तो लोग करना चाह रहे हैं, अगर बुक उपलब्ध हो जाए तो मैं सम्मानित सदस्यों से बोलूँ कि बुक लॉन्च कर लें। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे कॉलीग्स मंजू जी, महफूज जी, सुरेंद्र जी, नाजिया जी और अजय जी को। ये किताब एक SOP है फॉर द विमेन FPO promotion under the NRLM architecture. I'll request to have a great round of applause for all the people who are present on the stage. And I'll request my colleagues, Mr. Deepak ji, Mansoor and Kareem ji, to please come on the stage and grace their presence on the stage. फाउंडेशन और TRI की तरफ से जो 10 लाइट हाउस FPOs हैं उनके बारे में। Thank you so much, everyone. Now I'll request our esteemed guests to take their presence. Yeah. धन्यवाद। आज के IRC के थीम उद्यम शक्ति बिल्डिंग फ्लरिशिंग उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने सुबह से लेकर के अभी तक के विमर्श में बहुत ही रोचक चीज़ें सीखी। यदि गांव फलने फूलने लगे तभी हमारा देश आत्मनिर्भर बन सकता है। कुछ बिंदु, मैं एक दो बिंदु हाईलाइट करना चाहूँगा। सबसे पहला, युवाओं की आकांक्षा को अवसर में बदलने की बात हुई। उत्तर प्रदेश में प्रतिभा का अकूत भंडार है, पर समय आ गया है कि इन युवाओं को उनके गांव में ही रोज़गार और नेतृत्व का अवसर मिले, और इसके लिए उन्हें जागरूक किया जाए और पूरे एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को दुरुस्त किया जाए। दूसरी बात जो निकल के आई, स्थानीय उद्यमिता को और भी प्रोत्साहित किया जाए। और तीसरी बात आई कि बहुस्तरीय साझेदारी का निर्माण किया जाए।
तो इन तीनों विषयों को लेकर निश्चित ही आप लोगों से जो सुझाव मिले हैं उन्हें लेकर हम आगे बढ़ेंगे। टीआरआई उत्तर प्रदेश और लखनऊ विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ग्रामीण भारत संगोष्ठी के गरिमामयी कार्यक्रम में आप सभी अतिथियों ने अपना समय दिया। मैं उसके लिए टीआरआई परिवार की ओर से आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। खास तौर से हमारे बीच में उपस्थित विशिष्ट अतिथि पद्मश्री उमाशंकर पांडे जी, आपने बांदा से यहाँ आकर के हमें इतना समय दिया और आपने जो विचार दिया कि हर खेत में मेड़ और हर मेड़ पे पेड़, इस चीज़ को निश्चित ही हम लेकर के आगे बढ़ेंगे। और आपको ये भी बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि टीआरआई इस विषय पर हमारा एक थीम है जिसमें कि हम क्लाइमेट रेजिलिएंट पे काम करते हैं और उसमें वृक्षारोपण पे खास तौर से फलदार वृक्ष या दूसरे तरीके का बैम्बू आदि प्लांटेशन करके कैसे ग्राम पंचायतों का स्वयं का आय का स्रोत हो सके, इन विषयों पे टीआरआई काम कर रही है। कार्बन क्रेडिट जैसी चीज़ जो आपने बताया था कि आपके अभियान से उत्तर प्रदेश में भी किसानों को 500 रुपए तक मिला, ऐसा ही चीज़ हम झारखंड में और मध्य प्रदेश में कर रहे हैं। इसी के साथ मैं विशेष धन्यवाद दूंगा उप कुलपति लखनऊ विश्वविद्यालय को कि जिन्होंने अनुमति प्रदान किए इतने ही अच्छे कार्यक्रम को यहाँ पे आयोजित करने के लिए और टीआरआई के साथ भागीदारी करने की सहमति दी। तत्पश्चात मैं धन्यवाद दूंगा हमारे बीच में प्रारंभिक सत्र में उपस्थित डीन प्रोफेसर अरविंद मोहन जी का, जिन्होंने अपने जोशीले शब्दों से, भाषण से हम सभी को प्रेरित किया। और आप आगे भी टीआरआई और ऐसी संस्थाओं को सहयोग करते रहेंगे और मिलकर आगे बढ़ेंगे। साथ ही मैं प्रोफेसर डॉक्टर डी.आर. साहू, जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को सजाने और संवारने में हमें मार्गदर्शन दिया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। समापन समारोह में मंच पर उपस्थित हमारे पैनल के आप सभी अतिथिगण का, साथ ही हमारे एसोसिएट डायरेक्टर और स्टेट लीड करीम मलिक, मार्गदर्शन देते हुए पूरे समय में दीपक माथुर जी, गौरव मिश्रा जी, राकेश जी, मंसूर जी, विश्वदीप और सभी टीआरआई के साथी जिन्होंने न ही आगे कार्यक्रम के बैकग्राउंड में रह करके पूरा एक एक चीज़ के बारे में सोचा और संवारा, आप सभी को भी मैं विशेष धन्यवाद देता हूं। हमारे सामने विराजमान कर्मठ शासकीय अधिकारीगण, संवेदनशील सामाजिक संगठनों के साथीगण, विभिन्न शिक्षण संस्थाओं, मैं कुछ नाम लेना चाहूँगा, लखनऊ विश्वविद्यालय और कुछ हमारे बीच में साथी आईआईएम लखनऊ से भी आए हैं। आप सभी विद्यार्थियों को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगा। और साथ में एक बार सुबह की बात फिर से दोहराता हूं कि आपसे जो हमने अपील की थी, आप में से जिन भी साथियों की सीख सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे पास पहुंचेंगी, हम टॉप 10 लोगों को लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ मिलकर के सम्मानित करेंगे। हमारे बीच उपस्थित मीडिया के साथीगण, हम आपको विशेष धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपके वजह से यह कार्यक्रम सिर्फ इस सभागार तक सीमित नहीं है। आपके होने से यह जो विमर्श हुआ, यह संगोष्ठी हुई, यह बात प्रदेश में ही नहीं पूरे देश तक पहुंचेगी। इसलिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। कार्यक्रम के सफल क्रियान्वयन में टीआरआई के एक एक सदस्य की भूमिका प्रमुख थी। मैं जिनका नाम नहीं ले पाया हूं वो माफ़ करेंगे। उन सभी साथियों का धन्यवाद। और अंत में हमारे सहयोगी मेसर्स 7 डेज एंटरटेनमेंट, जिन्होंने बैकग्राउंड में काफ़ी मेहनत किया, मैं उनको भी धन्यवाद देते हुए मंच पे मंचासीन सभी अधिकारियों को पुनः प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं। और साथ ही आप लोगों से निवेदन है कि आप अवश्य ही लंच करके सभी लोग जाएंगे। लंच की व्यवस्था की गई है। हमारे जितने प्रतिभागी हैं, आप पीछे गेट से निकलेंगे तो बाएं तरफ से गैलरी हॉल से आएंगे, बगल में हॉल में आपके लंच की व्यवस्था की गई है। अतिथियों से और मीडिया के साथियों से निवेदन है कि आप हमारे साथियों के साथ फर्स्ट फ्लोर पे चलेंगे। आप लोगों के लिए लंच की व्यवस्था वहाँ की गई। एक बार पुनः सभी को साधुवाद, धन्यवाद। एक ग्रुप फोटो मैं अतिथियों से आग्रह करूंगा कि वो 2 मिनट रुकेंगे। हमारे टीआरआई के साथी और जो स्टूडेंट आना चाहते हैं आप भी आ सकते हैं।